ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕੁਸਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਪੈਰੋਂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਿਲ ਵੇਖ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਤਾਰ ਲੈ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ। ਸੇ ਜਨ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੈ ਥਾਉ। ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਏਵ ਤਤ ਸਾਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ
ਜਾਪ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਮੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ, 4 ਫੋਟੋਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ID ਪ੍ਰੂਫ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਖੜ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਔਰ ਰਸਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਸਾਂਬਰ ਦੀ ਰਸਤ,
ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਓ। ਲਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਓ ਨਹ ਕਾਨਣ, ਪਰਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਧਾਵਤ, ਸਮਝਿਓ ਨ ਸਮਝਾਇਓ। ਕਹਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਵਿਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਔਗਣ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਰਨਾਇਓ। ਕਹਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਵਿਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਔਗਣ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਰਨਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1243 ਤੇ 44 ਪੰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ।
दया करन सतगुरु महाराज, बख्शिश करन सतगुरु, साडी जिहड़ी जीवन यात्रा है ये सफल हो जाए। सतगुरु जी ने जो मनोहर वाक उच्चारण किया है, जो माणयोग भाई साहब होरां बड़े प्यार नाल सानू सरवण करवाया, ये सुंदर शब्द 4 पदां ते आधारित है और हरेक पद दियां 4-4 तुकां ने। इन्हां 4 पदों तो इलावा रहाओ दियां तुकां जुदा ने और अक्सर ही विद्वान सज्जन इयों विचारिया करते हैं कि ऐसे शब्दों में जो रहाओ दियां तुकां होया ने करदियां ने, ये शब्द दा केंद्री भाव हुंदियां ने। जिस वेले असीं विचारते हाँ ये गल साडे अंदर खुल जाती है। बाकी जितने पद ने, भावें वो 2 ने, भावें वो 4 ने, भावें वधीक ने, उन्हां दे विच सतगुरु महाराज ने आप ही उस केंद्री भाव की व्याख्या की हुई है, जिसनूं समय अनुसार असीं फरदर होर विचारन का यतन करते हैं। सतगुरु जी ने, महाराज ने पावन वचन आखिया, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित भाई, तार लए सागर संसार। फिर ध्यान करना, राम नाम जी को आधार, राम दा नाम है साडे जीवन दा, साडी जिंद दा आधार, आसरा। गुर प्रसाद जपो नित भाई, ए भाई गुरु कृपा दे राही तुसी इसनूं जपो। तार लए सागर संसार, जिहड़े लोग जपदे ने परमेश्वर करतार उन्हां नूं संसार समुंदर तो पार उतार लैंदा है। मैं फिर बेनती करा, राम नाम जी को आधार, राम दा नाम, किस राम दा नाम? श्री रामचंद्र की गल नहीं हो रही, दशरथ के बेटा जी की बात नहीं हो रही, जिन्होंने अवतारी पुरुष मन्निया गया। गल उस राम की हो रही है जिस राम नूं इस रामचंद्र जी ने भी आराध्या। मेरा भाव समझ गए हो आप जी? उस राम की गल हो रही है जिस राम नूं इन्हां रामचंद्र जी ने भी आराध्या। कबीर जी ने गल नूं समझाउण दा बड़ा सफल यतन किया है। सोई राम सोई ओ, सोई राम सब है कहें, सोई कौतकहार। एक कौतकहार है, भाव अवतारी पुरुष जिसनूं आख्या गया। एक राम है जो सर्व व्यापक है। इत्थे गल हो रही है सर्व व्यापक राम दी, जिसनूं असी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के आदेश के अनुसार वाहेगुरु कह के असी याद करते हैं। इस तो इलावा अनेकां होर नाम ने ਜਿਹੜੇ सिख चिंतन का हिस्सा ने। असी करता पुरख भी कह लेंदे हैं, करतार भी कह लेंदे हैं, अकाल पुरख भी कह लेंदे हैं, इतिहाद बेअंत नाम ने। तुसीं सारे हुणे जाप साहिब का पाठ करके आए होवोगे। हाँ जी, कितने नाम ने, सिफाती नाम जिन्होंने आख्या गया, बेअंत नाम। कोई भी नाम लैके संबोधन किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, लेकिन सिख नेम के अनुसार सिखी मंडल विच निराले पंथ की बात निराली रहे होवे
और उसके कुछ होर भेत भी ने। गुरु नानक साहब जी ने सानू इंट्रोड्यूस करवाया कि वो जो राम है गुरु के कहाउण वाले। इस तरह अगला शब्द आया नाम। राम नाम, नाम तो की भाव है? असी कहांगे नाम तो भाव है नेम। नेम जिहड़ा हुणे तुसां ने दस्सिया कि उस सर्वशक्तिमान का जो नेम है वो है नाम। वो भी है, वो भी है, लेकिन वो आप भी है समुचे रूप में। हस्ती उसकी नाम के तारे सगले जंत आदि। उसकी वडियाई भी नाम है, उसके गुण भी नाम ने, गुरबाणी भी नाम है। जेड़े तुसी सत्संगी दूर नेड़े बैठे होए शब्द की विचार सुनते हो, शब्द की विचार करते हो, ते आप जी के ध्यान दे विच यह नुकता प्रगट जरूर हो गया होगा। पिछले दिनों तुसां ने शब्द जरूर सुनिया, विचार की है पहला मेरे आउण तो, इस संग्रह तो पहला। नाम लैत मन प्रगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत 68 मजनाया, तीर्थ हमरा हरि को नाम, गुरु उपदेशया तत् ज्ञान। एक दी बात नहीं हो रही, कुछ होर हो रहा है। राम नाम, उसकी वडियाई, राम की वडियाई, वाहिगुरु जी की वडियाई, वाहिगुरु जी की सिफत, वाहिगुरु जी की सलाह, वाहिगुरु जी की सिफत सलाह, वाहिगुरु जी के गुण, वाहिगुरु जी दियां वडियाइयां, वाहिगुरु जी दियां कथा कहानियां, ये सारे नाम दे अर्थ ने। ये सारे नाम दे अर्थ ने। सिख नाम जपे तो किवें जपिया जा सकता है? गुरु खालसा जी ने मर्यादा मुकर्रर करदिया होया, स्थापित करदिया होया बचन किया कि सिख अमृत वेले पैर रात रहिंदी जाग के सावधान होके एक अकाल पुरख का ध्यान करदिया होया वाहिगुरु जपे। ये भी नाम है, जिवें असीं पहला विचार चुके हैं। उस तो बाद नितनेम दियां बाणियां का पाठ करे, ये भी नाम का हिस्सा है। उस तो बाद फिर संगत विच आके बैठे, संगत विच बैठ के बाणी का गायन सरवण करे, फिर संगत विच बैठ के बाणी की विचार सरवण करे। ये चार पक्ष ने साडे ध्यान करने वाले। चार तरह करके सिक्खी मंडल विच नाम जपिया जाता है। मैं अपने वालों नहीं कुछ कह रहा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का मथन करके जो सिख रहत मर्यादा हुई, स्थापित हुई, उस दे बिल्कुल आरंभ दे विच इस गल नूं खोल दिता गया। प्रभाते उठ के या किसी भी समय वाहिगुरु शब्द जपना, प्रभाते उठ के फिर भी किसी समय, जिमें कि हुक्म है कि हर सिख का श्री गुरु ग्रंथ साहिब अपना पाठ, सधारण पाठ जिन्होंने असीं सहज पाठ आखते हैं, जारी रहना चाहिए है, जारी रहे। उस तो इलावा फिर संगत विच आके कीर्तन सुने, सवेरे सुबह अमृत वेले या किसी भी वेले शब्द के विचार सुने, सुबह शाम या किसी भी वेले। ये सिख का नाम जपन है। वाहिगुरु जी दियां वडियाइयां करन दा जरिया ने, वाहिगुरु जी की सिफत सलाह करन दे साधन ने साडे। कोई मनुख ऐसा भी हैगा, विरला वांझा साडे विच वेखिया सुनिया जा सकता है, जिहड़ा चौहों दे विचों किसी एक पहलू ते जोर दिंदा है, बाकी पहलुओं नूं नज़रअंदाज कर दिंदा। तो इउं समझ लेना सिख का नितनेम मुकम्मल नहीं हुंदा।
सिख ने वाहिगुरू शब्द का जाप भी करना है, बाणी भी पढ़नी है, शब्द सुनना भी है, गाउना भी है, अते विचार सुननी भी है, विचार करनी भी है। यह है नाम जपना। हुण इस नाल हुंदा की है? सतगुरु जी महाराज ने आख्या, राम नाम जी को आधार। इत्थे जी तो भाव है जिंद। शब्द के अखीर विच भी शब्द आया, जी जंत सब तेरा हाथ। उत्थे जी तो भाव है बहुते जीव, भाव सारे मनुख आदि प्राणी। इत्थे है जी जिंद, इंडिविजुअल का इत्थे जिक्र किया गया। राम नाम जी को आधार, ये जीवन का आधार है। सिख जिस वेले वाहिगुरू जपदा है, सिख जिस वेले बाणी पढ़दा है, ये उसका जाती कर्म है, इसका शख्सी कर्म है। सिख जिस वेले संगत विच आउंदा है तो संगत विच आके गुरबाणी का गायन सुनता है, विचार सुनता है। यह है जमाती कर्म, जिसनों आख्या गया संगती कर्म, समूहक कर्म है। बाणी पढ़नी, नाम जपना, आयों आप कह लीए जिमें असी आम बोल चाल विच ना शब्द लै आंदा, वाहिगुरू जपना या बाणी पढ़नी, ये जाती कर्म ने, ये शख्सी कर्म ने। पर संगत विच आके शब्द का गायन अथवा शब्द की विचार, ये संगति कर्म है। कुछ भी इहदे विचों कीता जावे, चौं विचों कुछ भी कीता जावे, उहदे नाल असी आत्मक तौर ते मजबूत हुंदे हां, असी आत्मक तौर ते बलवान हुंदे हां। साडे जीवन दे विचों भरमां दी निवृत्ति हुंदी है, ज्ञान का प्रकाश हुंदा है, वाहिगुरू जी दे प्यार का प्रकाश हुंदा है, अंदरों नफरत निकलती है, ईर्खा निकलती है, कमजोरियां निकलदियां ने, गुणां का प्रवेश हुंदा है, आवेश हुंदा है, जीवन मजबूत हुंदा है। हौली 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 सहजे सहजे सिख जिहड़ा है वो गुरु का रूप हो जाता है, परमेश्वर का रूप हो जाता है। अक्सर ही असी बचन इं चेते कर लिया करते हैं सुखमनी साहब का, ज्यों मंदिर को थम है थमन, हाँ जी, त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन। ये कितना सुंदर महल बनया होया है श्री बंगला साहब, लेकिन इस एक छत के थले कितने सारे पिलर ने, कितने सारे थंब ने, दीवारां ने। असी सोच सकते हैं कि बगैर दीवारों तो कोई छत उपर खड़ी हो सकेगी? छत नूं मजबूती नाल खड़ी रखण दे वास्ते, खड़ी करी रखण दे वास्ते मजबूत थंबां दा होना, मजबूत दीवारां दा होना बड़ा जरूरी है। ते सतगुरु जी कहंदे ने, शब्द तो बिना, बाणी तो बिना सिख दा मन भी अडोल नहीं रह सकता। सिख दा मन भी थिड़कदा है। जे सिख चाहता है कि मेरा मन अडोल रहे तो वह किसी भी रूप दे विच बाणी नाल जुड़िया रहे। इनू संखेप लफ्ज़ां विच ऐं भी आखिया, मानयोग जी ने दसिया ना, भाई साहब होरां ने, कि गुरु नानक साहब जी का 550 साला आ रहा तो आप मनाना है सारिਆਂ ने। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखियो जे जन्म साखियां दे विच एक वचन गुरु नानक साहब ना जिथे भी जाते ने, ਜਿਹੜੇ लोग भी प्यार करते हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करके आखते ने, करतार चित आवे। की आखते ने भला? करतार चित आवे। इकल्ले रूप दे विच जुड़ बैठा, करतार चित आवे। बाणी शब्द पढ़न लगा, सिख उदों भी शब्द लिखिया करते सन ते पढ़िया करते सन। करतार चित आवे। गाउन लगा, सुरती करतार विच होवे, करतार चित होवे आवे। विचारन लगा ते होर कोई कहानियां नूं कथा नहीं आखिया जा सकता। करतार चित आवे। जी को आधार, जी को आधार। जे असी बलवान होना है, जिहड़ी साडे जीवन विच किते किते थिड़कण मिलदी है ना, असी थिड़क जाते हैं, साडे परिवार विचों कोई थिड़क जाता है,
साडा कोई सखा सहेली, कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई प्यारा थिड़क जाता असीं वेखदे हां। थिड़कण का की कारण है? होवे सिख ते इवें थिड़के। थिड़कण का की कारण है? मैनूं खिमा करियो जे, थिड़कण का कारण है शब्द नालों विथते चले जाना, बाणी नालों विथते चले जाना। मैं एक बेनती करा आप जी सबना नूं, गुरु नानक साहब महाराज का 550 साल जे मनाउणा है ना असां ने, ते उन्हां दे इस बचन नूं चेते रखियो जे, कहंदे ने फसल किसी भी प्रकार की होवे, भावें झोना बीजिया होवे ते भावें कणक लाई होवे, खाद जिन्नी मर्जी पा लईए, राखी जिन्नी मर्जी कर लईए, ते धुप जिन्नी मर्जी समय अनुसार पैंदी रहे, तुसी की सोचते हो कि भावें झोना होवे, चावल होण ते भावें कणक होवे, जे उन्हां नूं पानी ना मिले तो कोई झाड़ होवेगा? पौधे हरे भरे होणगे, वधण फुल्लणगे, उन्हां नूं कोई झाड़ होवेगा, सानूं कुछ प्राप्त होवेगा? आले दुआले पहरे ला के बैठा है ते बैठा रहे, बाड़ां कीतियां ने ते कीती रखे, पानी तो दे नहीं रहा। ते हजूर कहने लगे, जिस तरह ना फसल दे हरा भरा करने वास्ते, फसल तो लाभ लैण वास्ते, जिस तरह फसल लई पानी का होना जरूरी है ना, सिख भावें सिखां दे घर विच जम्मिया होवे, सदा ही सिख वास्ते बाणी नाल जुड़े रहना जरूरी है। जिवें फसल लई पानी जरूरी है, सिख लई बाणी जरूरी है। किसी रूप में भी बाणी नाल जुड़ जावे, वाहिगुरू वाहिगुरू आखी जावे, और जिहड़ी बाणी जबानी याद है बाणी नाल जुड़िया रहे, शब्द कीर्तन नाल जुड़ जावे, शब्द विचार नाल जुड़ जावे, बाणी नाल जुड़िया रहे। ना जुड़ेगा तो फिर की होवेगा? फिर थिड़केगा। धी भी थिड़क सकती है, पुत्र भी थिड़क सकता है, सियाणा बुढ़ा नड्डा भी थिड़क सकता है, कोई भी थिड़क सकता है। पातशाह कहते हैं, राम नाम जी को आधार, रब्बी याद, वाहिगुरू जी की याद साडे जीवन का आधार है। हुण यह गल समझण समझाउण वाली, समझ समझा लई ना, फिर अगे सतगुरु महाराज एक होर भेत साडी झोली विच पाउंदे ने, गुर प्रसाद जपो नित भाई। हुण तुसां ने जे वाहिगुरू कहना है, बाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है, कथा करनी है, इत्याद अपनियां मर्जियां ना तोड़ियो जे, गुरमत अनुसार करियो जे। फिर ध्यान करना, मैं किसी ते पॉइंट ते मैं उंगल नहीं कर रहा, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तुसी सतसंगी जितने हो भली प्रकार जानते हो कि सिੱਖੀ मंडल विच असी किवें चल रहे हैं। असी वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे हैं, असी नितनेम दीयां बाणियां पढ़ रहे हैं अथवा होर बाणी का पाठ कर रहे हैं, असी शब्द का कीर्तन कर रहे हैं, असी शब्द की विचार सुन कर रहे हैं। किवें कर रहे हैं? अपनी मत नूं अगे रख के नहीं, गुरु की मत के अनुसार। गुर प्रसाद जपो नित भाई। फिर आखिया पातशाह जी ने, जिहड़ा इवें चलेगा, जिहड़ा इवें करेगा, जिहड़ा सदा ही इवें करेगा, तार लए सागर संसार। वाहिगुरू जी उन्होंने संसार समुंदर तो तार लेंदा है, भाव पार उतारा उन्हों का कर दिंदा है। हुण नाम जपे, गुरमत अनुसार जपे, दो गल्लां हो गईयां। असी सारे गुरु के कहाउण वाले ऐं कह लियो, एक पीढ़ी तो 5 पीढ़ियां तो 10 पीढ़ियां तो वधिक समय तो लैके असी शब्द के प्रति समर्पित, शब्द नूं असी मत्था टेकण वाले, शब्द दीयां परिक्रमा करन वाले, शब्द नाल साडी दुख ते सुख, जम्मण ते मरण की सांझ। फिर थिड़कण क्यों? फिर असी पिछे क्यों हटते हैं? फिर साडे कोल वाहिगुरू वाहिगुरू कहण दा समा क्यों नहीं है? फिर साडे कोल नितनेम करन दा समा क्यों नहीं है?
फिर साडे पास संगत करन दा समा क्यों नहीं है? एक पॉइंट साडे सामने आता है, पता हैगा कि जी को आधार है। जे जी को आधार है तो फिर असी जुड़ते क्यों नहीं? या दूजा पक्ष है, जिहड़े जुड़े बैठे ने, ये जुड़े क्यों बैठे ने? जिहड़े जुड़े बैठे ने, ये क्यों जुड़े बैठे ने? सतगुरु महाराज ने शब्द के बिल्कुल आरंभ दे विच ना यह वचन कर दिता, देखना गुरु पातशाह कृपा करन महाराज सिखां दे पास ज्ञान होवे, यह करना है समय। जेड़े चल रहे ने वो भी ध्यान रखन, जेड़े नहीं चल रहे वो भी ध्यान रखन। ज्ञान अपनी थां ते है, पर ज्ञान जीवन विच इंप्लीमेंट हो जावे मुकम्मल रूप दे विच। ये कदों हुंदा है? अपनी दया करे सो पाए। एक बार सारे आखो वाहेगुरु, फिर आखो प्यार नाल वाहेगुरु। मैं अर्ज की है, ज्ञान होना चाहिए है। नानक धन 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 जन आए ते परवान। कौन? जिन्हां ने जिन जानिया से ही तरे, से सूरे से वीर। पर जिन्हां ने जान लिया वो सूरे भी हो गए, बहादुर भी हो गए, वो धन धन भी हो गए। कहते ने नहीं, जब तक ना विच ऐ ना हो, अपनी दया करे सो पाए। वाहिगुरु जी की दया होवे, श्री अकाल पुरख जी की दया होवे, गुरु परमेश्वर की दया होवे। मैं जे इं आखा, जेड़े जुड़े बैठे हैं, आ देखो हाँ किवें हुम हुमा के मार क्यों लगे हुए ने। सारा हफ्ता नहीं आ सके, सोम भी लंघिया, मंगल भी लंघिया है, बाकी दिन सारे लंघे, ना सवेरे आ सके ना शाम आ सके। अज दा छुट्टी का दिन समझिया, नींद नहीं आती, बड़ी नींद आती है। बंदे आलसी हो जाते हैं भी अज तो रज के सौ लईए, अज तो ऐतवार है। लेकिन देखो मत्था टेकन वालियां दी थां नहीं बनती पई, क्यों लगे हुए ने। पर अगली गल यह है कि सिर्फ इतने ही सिख ने इस इलाके विच वसदे, ये तो गल नहीं है ना। फिर ए जेड़े आ रहे ने, जेड़े आ गए ने, जेड़े प्रदेशों विच भी जुड़े बैठे ने, वो क्यों जुड़े बैठे ने? उन्हां दी झोली विच दया पै गई है। जेड़े प्रदेशों विच होण दी बजाय इत्थे देश विच ही बैठे ने। कदी असी तरसदे हुंदे सां, हरिमंदर साहब दे अंदर ना एक रेडियो स्टेशन लग जाए, असी तरसदे हुंदे सां, असी मोर्चे लाउंदे हुंदे सां। हुण एक रेडियो ही नहीं लगा, हुण टैलीविजन लग गया। एक टैलीविजन नहीं लगा, किन्ने सारे चैनल लग गए। हुण भी असी शब्द ना सुनीए, हुण भी असी शब्द ना गाइए, तो फिर असी विचों की लभांगे? ये कारण की हो रहा है? एक दूजे को अक्यूज किया जा सकता है, साडे प्रचारक नहीं फर्ज निभा रहे, प्रबंधक नहीं निभा रहे, मापे नहीं निभा रहे, आप नहीं असी सुरती कर रहे। सतगुरु कहते ने अयों कह लईए वाहिगुरु जी की दया नहीं हो रही, अयों कह लईए आपां। दया दा, उसकी मरसी दा, उसके ब्लैसिंग्स दा, उसके तरस दा, उसकी मेहर दा, उसकी बख्शिश दा सिख जीवन दे विच बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। असी इत्थे आके खड़ो के हथ जोड़ के की मंगते हैं? असी कहांगे असी धन पदार्थ मंगे, परिवार मंगे, कुछ मंगे, आ मंगे, आ मंगे। असी दया मंगते हैं, तुसी दया करो, तुसी कृपा करो साडे ते। और नाल नाल ना गुरु पातशाह समझाउंदे ने कि दया होनी ये केवल पात्रता वाली गल नहीं है,
जे कोई आखे कि सियाणियां ते दया हुंदी है, भांडे जिन्होंने सीधे कीते ने उन्हां ते दया हुंदी है, या कोई होर गल है, मैं कहांगा गल्लां सारियां ठीक ने, पर जोई प्रे भावै ताहे सोवत जगावै जाए, जागत बिहावै जाए ताहे ना बुलावै। वाह करो भाई साहब गुरदास जी दे इस बचन के अर्थ जिहड़े उन्होंने इन अजिहे सिद्धांतां दे अर्थ कीते। असी दया मंगते हैं। सतगुरु जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस वक्त जफरनामा आख्या है तो जफरनामा दे विच वचन करते हैं, कमाल करामात कायम करीम रजा बख्शो राज करिहा कुन रहीम, न साज हो न बाज हो न फौज हो न फर्श, खुदावंद बख्शंदा ऐशे अर्श, जहां पाक जबर अस्त जाहिर जहूर, उजामी देव हमचो हाजिर हजूर। कहते ने अमा बख्श, अमा बख्श बख्शंदा दस्तगीर, खता बख्श रोजी देह दिल पजीर। वो हथ फड़ लैन वाला है, वो प्यार करने वाला है। किदा हथ फड़ लैन वाला है, किस नाल प्यार करन वाला है? असी कहांगे जिहड़ा शरण विच आ जाता है बिल्कुल ठीक, जिहड़ा प्यार करता है बिल्कुल ठीक, पर जिहड़ा शरण विच भी नहीं आउंदा ना, वाहिगुरू अगली बात है, बहुत अगे दी बात। जिहड़ा किसी तरह शरण विच भी ना आया, बेमुख होकर भी कदी तुर पिया, वाहिगुरू जी फिर भी त्रुट के उसकी बांह फड़ लेंदे ने, फड़ लेंदे ने। क्यों फड़ लेंदे ने? कहते ने मेरा तो होया, ये मेरा नहीं, इसनूं जीवन मैं नहीं दिता, इसनूं जन्म मैं नहीं दिता। असी बंदे जिहड़े बड़े अकलमंद हाँ ना, असी कह लेंदे हां मैं सियाणा हाँ, मेरे हथ चलते ने, मेरे पैर चलते ने, मैं यह कुछ करदा, मैं वह कुछ करदा, मैं कर सकदा, इसलिए मेरा घर पड़िया, मेरे भंडार भरे ने, या कुछ। ते सियाणे दूजे आखदे ने वाहिगुरू जी दे नाल प्यार करन वाले, ओए भलिया अपने अंदर झात पा के वेख, तू जम्मिया अपनी मर्जी नाल जम्मिया, तेरा पिछला जन्म की सी, उस तो पिछला की सी, तू पात्र हो गया सै, डिजर्व करदा सै, अधिकारी सै तू, कि वाहिगुरू जी तरस आ गया तेरे ते। किहड़ी गल है दोवां दे विचों? किहड़ी गल है? वाहिगुरू जी नूं तरस आ गया, वाहिगुरू जी दया दे घर विच आ गए। जा तिस भाना तां जम्मिया, ते जे जम पिया ते जीवन किने दिता? हाँ जी, साड़ियां सियाणपां ते जीवन चलदा पिया। वाहिगुरू जी ने तो उदों भी जीवन दिता, आरंभ दे विच भी, मां दे पेट विच, मां दे पेट तो बाहर आके आप अजे पासा लैण जोगा नहीं, ते जीवन किने दिता? भैन भरा मां बाप ये सारा कुछ मंडल किसने दिता? उसे दी ही तो दया है। अज आखे मैनू दया की लोड़ ही नहीं है, तो भुल नहीं है, बहुत वड्डी भुल है। असी थां थां ते वार वार मंग करते हाँ, हे वाहिगुरू जी तुसी कृपा करो, साडे ते दया करो, दया करो। बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजै लड़ लाए। दया करो बसो मन आए। जब तक वाहिगुरू जी कृपा नहीं करते ना, मैनू खिमा करो जे दया नहीं हुंदी साडे ते। सुनिया होया विचारिया होया सुनन विचारन तक ही रह जाता है। कन्ना नाल सुन लिया उत्थे ही रह गया, जबान नाल बोल लिया उत्थे ही रह गया। नौवें पातशाह महाराज का पावन वचन आपां ने पहला याद किया, कहते ने मन कर कबहू ना हर गुण गायो। इहदे विचों किहड़ी चीज माइनस है भला? तुसीं नोटिस करियो। गाया नहीं, गाउण वालियां ने गाया। ये नहीं कि रागियां की गल हो रही है, कीर्तन हो रहा हुंदा है, असीं सारे शब्द गा रहे हुंदे आ, सानू सारियां नूं गाउणा चाहिदा है। कोई सुरती नाल गा रहा है,
कोई जीवा नाल गा रहा है, गाया जावे। सुन नहीं रहे होंदे, असी सुन रहे होंदे आ, लेकिन कहते ने फिर की होया, विखिया सकत रहे हो निसबासुर, दिन रात ना माया दे प्रभाव थले ही रहे, माया बनाउण वाले माया देण वाले दे चरणों तक ना पहुंच सके असी। और सानू अपनी अकल ही अगे चंगी लगे, कीनो अपनो भायो। वाह, धन्यवाद। कल प्रिंसीपल ज्ञानी बलजीत सिंह जी शब्द की विचार कर रहे सन, मैं थोड़ा जिहा आंशिक तौर पर सुन सकिया। जिहड़ा शब्द सी, चितवत पाप न आलक आवे, बेसुआ भजत किछ न शर्म आवे, सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै, माया लग भूलो संसार। अगे की बचन सी भला, आप भुलाया भुलावन हारै, राच रहा मिर्था बिरथा व्यवहार। राच रहा बिरथा व्यवहार, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध बिहार बंद मन तावै, करना हार न जी मैं पावै। सतगुरां ने आखिया, गुरु तेग बहादुर साहब ने, दया नहीं होई ते गा के भी नहीं गाया, अजे तक दया नहीं होई, सुन के भी नहीं सुनिया। ते फिर अखीर ते आके ना कहते ने, हथ जोड़ो सारे जने, तुसी गाउण वाले, तुसी सुनन वाले, हथ जोड़ो सारे, ते प्यार नाल अरदास करदियां होया आखो, गुरु उपदेश सुनियो न कानन पर दारा लपटायो, पर निंदा कारण बहु धावत समझियो न समझायो, कहा कहो मैं अपनी करनी। हे सच्चे पातशाह, मैं तुहानू अपना हिरदा सामने खोल के की रखा, अपना जीवन मैं की रखा, जिहे विद जन्म गवायो, जिस करके मैं अपना सारा जीवन बर्बाद कर बैठा। कहे नानक सब अवगन मोह मैं, राख लेओ शरणायो। मेरे च बेअंत अवगन, मैं सुनी जा रहा टिकते नहीं पे, मैं गाई जा रहा टिकते नहीं पे। मैं एक इतिहासक उदाहरण तुहाडे नाल साझी करा, क्योंकि अज दिन है इतिहासक इस घटना का। आप जी नूं याद रहे, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह अज दे दिन पहली बार बाबा बकाला विखे दीवान सजा के संगत दे सन्मुख बैठे सन। अज दे दिन और इयों आखिया गया कि दीवान सजाउण दे विच प्रेरणा करन वाले जोरदार बेनती करन वाले सन भाई साहब भाई मक्खन शाह जी, जिन्होंने लुबाना आखिया गया। वो सन, मैं इयों वचन क्यों, सतगुरु महाराज गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह बाला प्रीतम जी 30 मार्च 1664 ਨੂੰ ज्योति जोत समाए। ते ज्योति जोत समाउण तो पहला इस भांत दे बचन कीते, बाबा बस्त है बीच बकाले बन गुर, संगत सकल संभाले। और सिख इतिहास ने मन्निया, भावें गुरु हरकिशन साहब इत्थे ने, बाबा तेग बहादुर साहब बकाले ने, पर गुरियाई ते विराजमान उसे दिन ही मन्ने गए 30 मार्च वाले दिन, पर प्रगट नहीं हुए, सामने नहीं आए। सामने क्यों नहीं आए? उसका छोटा जिहा कारण सी कि धीरमल वर्गे ते होर कई जिहड़े सन ना, वो कहंदे ने आके बाहर मंजियां डाह के बह गए, बाबे तां असीं हुंदे आ, बाबे के तां असीं आ। 8वें पातशाह ने वचन साडे बाबत कीता होया। मैं बीती शाम भी वचन कर रहा सा, 18 सैक्टर च हाजरी भरदा होया नोएडा। ऐसा मत सोचना कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जिम्मेवारी निभाउण तो किते हिचकिचाहट विच सन, ऐ नहीं गल सी। जिहड़े शीस देण दे वास्ते तैयारियां करदे पए ने, शीस देण वास्ते, जिन्हां नूं महान परोपकारी शहीद बाद विच आखिया गया, मन्निया गया, वो जिम्मेवारी निभाउण तो पिछे हट रहे सन। किते गल ये नहीं सी। फिर की गल सी? सानू इउं जापदा है, कच बहुत ढोल वजाया करदा है ते ढोल वजा के आखदा सच मैं हाँ।
कभी सच भी ढोल बजाता होंगे, झूठ बहुत बोलता है कि सच मैं हाँ, कभी सच नहीं बोलिया करता, रौला पाया करता कि सच मैं हाँ, ये झूठ है सारा। ये साडियां इलैक्शनां ने सानू ना पुठे पासे जा तोड़ दिता। सिख कदी नहीं आखिया करता ये सारे झूठे ने ते केवल मैं ही सच्चा। सिख कदी नहीं आखिया करता। और साहब जी कहते सन, समझ रहे सन कि गुरु बन जाना, गुरु नानक साहब का वारस बन जाना, ये थापिया ना जाए, हाँ जी, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ते इस नूं टिकण दे राह दे विच कोई रुकावट नहीं आ सकती। जिस करतार ने यह सारी पहली बनत बनाई है, करतार अगे भी कृपा करेगा। लेकिन भाई मक्खन शाह जिस वेले पहुंचते हैं, हुण ये कथा असां सारियां ने सुनी कि 500 सोने की मोहर लैके संगतां नूं नाल लैके पहलां कीरतपुरे आए, कीरतपुर तो चल के बकाले आए, इत्थे आके वेखिया इन्नियां मंजियां डसियां हुईयां ने। फिर 5-5 मोहरां अगे सारियां दे रखते गए, ते मन विच धारिया भी जे मैनूं ना सतगुरु जिहड़े सही होए ना, सच्चे होए, जदों मेरे कोल उन्हां ने अपनी अमानत मंगी, मैं समझांगा यह गल ठीक है, इत्थे ठीक है। सिख होर की सोच सकता सी। धीरमल जी के पास गए, हाल के उसके पास गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ रखी हुई सी। लेकिन यह जी भावना सी ना भाई साहब होरां दी, इत्थे भी पूरी ना हुई। अखीर आए बड़े मायूस ने, ते उदों वचन करते ने एक, जे किते यह गल नूं असीं पकड़ लईए सारे, तां कहंदे ने पता लगा कि गुरु हरकृष्ण साहब ने आखिया कि गुरु बाबा बकाले विच वसदे ने। ये तां गल बिल्कुल सच है। किन्नी उम्र के गुरु सन गुरु हरकृष्ण साहब जब ज्योति जोत समाए ने? 7 साल के, 8 के पूरे नहीं होए सन। सिख शरदा इत्थे खड़ोती है, सिद्ध इत्थे खड़ोता है। कहंदे ने सूरज ऐस पासे की बजाए ऐस पासे चढ़ जावे, समुंदर सुक जावे, पहाड़ एक थां तो दूजी थां तुर के चला जाए, कहंदे ने सारियां असंभव गल्लां ने, ये हो सकदियां ने, पर श्री हर कृष्ण बचन नहीं झूठे। गुरु हरकृष्ण साहब जी के बचन सच ने। फिर कहंदे ने मैनू क्यों नहीं दसदा पिया गुरु किहड़े ने? कहंदे ने परंतु मैं सिखी मैं काचा। गुरु हैगे ने, बकाले विच हैगे ने, ते मक्खन शाह नूं क्यों नहीं दसदा पिया? कहंदे ने मक्खन शाह नूं इसलिए नहीं दसदा पिया भी मक्खन शाह सिੱਖੀ विच अजे कच्चा है। वाह, यह निमरता है सिख दी, यह महान जीवन की बात है। छियां आया सी पहला, छियां आया अज भी बहुत सारा समान ना लुट पुट के लै गया, बाद की गल है। वैसे छियां कौन सी? बाबा धीरमल दा मसंद है। बाबा धीरमल दा मसंद सी छियां, प्रचारक सी छियां, बड़ा मन्निया तन्निया प्रचारक सी। ते भाई मक्खन शाह की सन? ये भी प्रचारक सन, बड़े मन्ने तन्ने प्रचारक सन। 1659 दे विच 7वें पातशाह जी ने इन्हां नूं प्रचारक थापिया सी। लेकिन भाई साहब व्यापार भी करया करते सन। वह भी प्रचारक है, वह भी प्रचारक है। मैं इस नुकते नूं तुहाडे सामने लिया रहा सां। भाई मक्खन शाह जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह सिख संगतां दीयां भावनावां नूं रौंदिया जा रहा है, ठग ते लुटेरे रौंद रहे ने। मैं बेनती करदा तुहाडे चरनां विच पल्ला पा के, महाराज तुसीं बाहर आओ, प्रगट होवो, सिख संगतां दी रखिया करो। सिख संगतां दे सन्मुख आए, उमड़ पईयां संगतां, बड़ी माया आई। वो धीरमल दे कोलों छियां आया, आके उसने सतगुरां नूं गोली मारी ते सारा कुछ बन के लुट के लै गया। भाई मक्खन शाह जी नूं पता लगा जदों कि अपने डेरे विच सन, पता लगा जाके ये सारा कुछ इकट्ठा करके ना लै आए। ते छियां दियां भी मुश्कां बधियां हुईयां हैं, आयों कह लीए जिवें इत्थे लैके आए हो ते धक्का मार के सुटिया चरनां दे विच। महाराज हुक्म करो तुसीं। कहने लगे की हुक्म करिए? इनू गोली मारीए। क्यों गोली मारीए?
क्योंकि इन्होंने तुहानू गोली मारी है, इन्होंने तुहानू गोली मारी है। और ये सैकंड टाइम से गुरु तेग बहादुर साहब के उपर इस प्रकार का यतन किया गया। धीरमल ने पहला एक बार आप गोली मारी सी, हुण शींह ने गोली मारी। शींह ने उस वेले डडाउंदे आख्या पातशाह मेरे को भुल हो गई है, भुल हो गई मेरे पास, मैं बड़ा सुनिया, मैं बड़ा विचारिया, लेकिन मेरे हिरदे विच वस नहीं सकिया। मन कर कभू ना हर गुण गाया, हिरदे विच वस नहीं सकिया। तुसी किरपा करो मेरे ते, अज मैनू क्षमा कर दिओ पातशाह, मैं आने वाले समय में सदा तुहाडा आग्याकार बन के रहांगा। मक्खन शाह 500 सोने की मोहर लैके आने वाले, एक मोहर 1 तोले की हुंदी सी ते हिसाब लगाया जो 6.25 किलो तो वध सोना सिख लैके आया। ते सतगुरु महाराज त्रुट के कहते ने भाई जी इहदियां मुश्कां भी खोल दिओ, ये जिहड़ा कुछ लिजाने चाहुंदे ने इन्हां नूं ये भी सारा कुछ दे दिओ। वाह, दोवें प्रचारक ने, दोवें मसंद ने, दोवां दे विच अंतर की है? एक लुटण वाला बन गया, दूजा जान बुझ के लटाउण वाले पासे तुर पिया। भाई गुरदास जी बोल पे, हाँ तिस विटों वारिया हुंदा तान जो होए निताना, हाँ तिस विटों वारिया हुंदा मान जो रहे निमाना, हाँ तिस विटों वारिया छोड़ सियाणप होए इयाना। सियाणपां छड्डणियां बड़ियां औखियां ने। कहंदे ने हाँ तिस विटों वारिया खसमै दा भाव है जिस भाना। जे गुरु ने आखिया मक्खन शाह दे दिओ, सब कुछ दे दिता, सब कुछ दे दिता। अपना लियांदा होया भी अपने हाथी दे दिता सारा कुछ। ये गल कित्थों मिलती है? सतगुरु महाराज कहते ने अपनी दया करे सो पाए, ऐ फिर टिकदी है। जिसके अंदर टिक गई, हर का नाम मन वसाए, रब्बी याद ओदे हिरदे विच टिकदी है, शब्द ओदे हिरदे विच टिकदा है। साच शब्द हिरदे मन माहे, गुरु का तरकाली शब्द हिरदे विच टिकदा है। जन्म जन्म के किल बिख जाहे, जन्मां जन्मांतरां दी सारी मैल लै जांदी है, फिर सारे पाप लै जांदे ने। राम नाम जी को आधार, ये जीवन का आधार है। गुर प्रसाद जपो नित भाई, गुरमत अनुसार सदा जपया करो। तार लए सागर संसार, जिहड़ा जपेगा वाहिगुरु जी उसनों पार उतार लेंदे ने। रहो जिन को लिखिया यह निधान, जिन्हां दे वाहिगुरु जी ने प्रसन्न होके ऐ संगति बख्शां कीतियां, बरकतां कीतियां, झोलियां भर दित्तियां याद नाल, से जन दरगाह पावे मान। ओ धर्म दे दर ते सिरोपियां दे हकदार बनते ने। सूख सहज आनंद गुण गाओ, जेड़ा गुण गाएगा उहदे जीवन में सुख आवेगा, टिका आवेगा, आनंद आवेगा। तुसी गाओ। आगे मिले निथावे थाओ, ते आने वाले जीवन दे विच तुहानू मान सन्मान प्राप्त होवेगा। जुगां जुगंतर ये तत् सार। फिर यह जो असूल है ये अज नहीं केवल थापिया गया, अज वालियां ने नहीं थापिया गया, सदा नहीं थापिया होया। हर सिमरन साचा विचार, रब्बी याद, रब्बी सिमरन सदा टिके रहन वाला गुरु नानक दा सदीवी उपदेश। जिस लड़ लाए लए सो लागै, जिन्हां ते किरपा करदे ने पातशाह, जुड़दे ने। जन्म जन्म का सोया जागै, जिहड़ा लगदा है वो अंदरों सुचेत हो जाता है, वो सावधान हो जाता है। तेरे भगत भगतन का आप, के वाहिगुरु जी तुसी अपनियां दे हो राखे हो, ते ये जिहड़े ने सदा तुहाडे आसरे ने। अपनी महिमा आपे जाप, आप ही तुसी इन्हां दे विच वरत के अपनी वडियाई करदे हो। जी जंत सब तेरा हाथ, हे वाहिगुरु जी सारे जिन्ने जी जंत ने वो सारे तुहाडे हथ विच ने।
नानक के प्रभ साध ही साथ। ते तुसी सदा ही सारिਆਂ ਦੇ अंग संग हो। जिवें असी जाप दे विच हुणे प्यार नाल याद कीता, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। पातशाह जी ने उपदेश दृढ़ करवाउंदियां होइयां आखिया, कहन लगे की करो, राम नाम जी को आधार, राम नाम जी को आधार, राम नाम जी को गुर प्रसाद जपो नित भाई, गुर प्रसाद जपो नित भाई, गुर प्रसाद तार लय सागर संसार, तार लय सागर संसार, तार लय सागर समय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।